Hi, my name is Divyanshu Raj. I am a student of Major SD Singh PG Ayurvedic Medical College and Hospital, Beva Road, Farrukhabad. From 2019 onwards, I am imparting my knowledge to my younger ones for a better future of this nation. See, first of all, if we consider biology as a product branches, in which we conclude that botany and zoology. And here comes the zoology. If we consider cell as a single chapter, it will take about 8 to 9 hours approximately to complete this chapter. But when we go in zoology, like human physiology, it will nearly end about a month. If so, if we take a lecture about 1.5 hours approximately, but when the chapter like genetics, ecology will come, then it will approximately take about a month, or it can even go to a 2 month. So, as a student or as a teacher, my aim is to just give a brief introduction about the particular chapter and have a clerical concept so that the student can grasp the better understanding of the chapter. That's my aim. Like zoology, or we can say ecology. It's one of the largest chapter, second after genetics. We can broadly consider about 1.5 hour lecture in a month, like genetics, molecular, Mendelian genetics. Molecular genetics can take about a month. Mendelian genetics can go about a month also. So there's half an hour lecture can't be an easy term to go on that way. So a student can grasp a better understanding of that chapter. But if we impart knowledge of about 1.5, then some questions can also be taken in the class. Lectures can be delivered fluently to the students. A student can get better understanding of the chapter. So my aim is to deliver all this chapter in a particular way that students should get a proper knowledge about this chapter. First of all, when we take a human physiology chapter like cardiovascular system, let me make you understand clearly. Data suggests that genetics, 2 parts, molecular, Mendelian. Molecular genetics can go in the 2 parts. History and statics. If we take our lecture, so genetics molecular can end about in a month. So we can total conclude like 30 and 15, 45 hours lectures. Same goes for molecular, Mendelian, it can also go into 45-hour lectures. So if we totally conclude that it itself goes into 90 hours lecture. So I think it's a vast and humongous syllabus to cover, and while preparing the NEET or preparing for board, it's depend upon how we are delivering that knowledge. If we go as a delivering the knowledge, then I would like to give a brief introduction on cardiovascular system. Cardiovascular system मतलब कि अगर हम बात करें तो
ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ये जैसे कि हार्ट है और वेसल्स वगैरह होता है, वेन्स वगैरह होते हैं, आर्टरी वगैरह, इनका सप्लाई होता है ब्लड का सर्कुलेशन वगैरह में। अगर सर्कुलेशन देखा जाए ब्लड का कैसे हो रहा है शरीर में, तो हार्ट के थ्रू मतलब हार्ट को समझना पड़ेगा। हार्ट का मैकेनिज्म क्या होता है, हार्ट के मैकेनिज्म को समझने के लिए हम समझेंगे पहले उसका चैम्बर क्या क्या होता है। चैम्बर को समझने के पहले हम पहले ये जाने ये मतलब कि अगर वेंट्रिकल है, आर्टरिया है, उसका ओरिजिन कैसे, उसका मसल्स का कॉन्ट्रैक्ट कैसे कर रहा है, रिलैक्स कैसे कर रहा है, उसके फाइबर्स में से कैसे रिलेशन, उसका कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, इम्पल्स कैसे ट्रांसमिट हो रहा है। अगर इन सारे जनरेशन को हम समझेंगे, टर्म्स को समझेंगे, तो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग बनेगा हमारे ब्रेन में, जो हाँ हम क्या समझना चाहते हैं। सवाल छूटेगा भी नहीं हमारे हाथ से, नॉलेज होगा। तो अगर हम समझें तो हार्ट को ऐसा मान सकते हैं दो भाग में। रफ डायग्राम बना रहा है, आप उस रफ डायग्राम से समझें, ये दो चीज़ें हैं, ऐसा समझिए बस, ठीक। आर्टरिया समझ लीजिए, वेंट्रिकल समझ लीजिए, ये आर्टरिया, ये वेंट्रिकल। अब देखिए कहता है जब शुरुआत ये होता है जब वेना कावा ओरिजिन हुआ, यहाँ से आया सुपीरियर वेना कावा, फिर कहता है सुपीरियर वेना कावा के साथ में इंफीरियर वेना कावा भी एंट्री लेता है। ठीक, अब हम सुपीरियर वेना कावा की बात करें तो सुपीरियर वेना कावा मतलब कि ऐसा समझिए, ये हमारा गर्दन का पार्ट है, इधर से जितना ब्लड है, मतलब कि आज आप समझे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये सारे सुपीरियर वेना कावा से हार्ट में आके ऊपरी सतह से, मतलब कि एट्रियम जो होता है, राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम के ऊपर वाले चैम्बर से ओपन होता है। इन्फीरियर वेना कावा नीचे से ब्लड लाता है, सारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाते हुए लाके फिर यहाँ ऊपर में खोलते हैं। मतलब राइट एट्रियम में जितना भी होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आके एंट्री लेते हैं वेना कावा से। अब वेना कावा प्रोमिनेंट है, वेना कावा यहाँ से अपने ब्लड को ट्रांसमिट करने के लिए फिर यहाँ इसका चैम्बर बना होता है। आपको सबको पता हुआ, यहाँ पे कास्पिड वाल्व होते हैं, ट्राइकास्पिड वाल्व, यहाँ बाइकास्पिड वाल्व होते हैं, मिट्रल वाल्व वगैरह सबसे नाम दिया गया है। और फिर यहाँ से आता है, वैसा समझिए अब ये वेंट्रिकल में ब्लड यहाँ चला जाता है। अब यहाँ से फिर लंग्स सिचुएटेड है यहाँ पे, तो समझिए यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी ब्लड को यहाँ लेके चला जाता है। अगर पल्मोनरी आर्टरी ब्लड ले जाता है, कौन सा ब्लड होता है, जाहिर सी बात है यहाँ से भैया कैसे कौन सा ब्लड आया था आपको, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला गया, कहाँ से गया, वेंट्रिकल से। तो ऑरिजिन कहाँ है पल्मोनरी आर्टरी का, वेंट्रिकल में। अगर इसके ओरिजिन को हम ऐसा समझें कि वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी जाकर लंग्स में चला गया, यहाँ से वापस ब्लड एट्रियम में आता है। अब कैसे आता है, पल्मोनरी वेन के थ्रू आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, एंट्री किसका हुआ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का, कहाँ, तो एट्रियम में। कौन सा, तो ये लेफ्ट एट्रियम था, ये राइट एट्रियम था। अब लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ एंट्री ले लिया, कहाँ से, लंग से। ये पल्मोनरी वेन आया, अगर पल्मोनरी वेन यहाँ ले आता है तो फिर यहाँ से जाता है, यहाँ चैम्बर है बाइकास्पिड वाल्व का, ये आया वेंट्रिकल में। अब वेंट्रिकल से फिर बॉडी में फ्लोट करके फिर यहाँ होता है। सिस्टम में क्या है बेटा, यहाँ सिस्टम क्या होता है समझ लीजिए। अगर ये सिस्टम क्या होता है, ये असल ये वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गन बॉडी में कंसिडर किया जाता है, जो पूरे बॉडी में आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सर्कुलेशन कराता है। ये हमने और भी समझ लिया। अब इसके समझेंगे भैया 3 प्रकार से लेयर दिया गया हार्ट का, कैसे दिया गया, तो एक समझिए आप एंडोकार्डियम, दूसरा समझिए आप पेरिकार्डियम, सॉरी मायोकार्डियम पकड़ लीजिए आप, मायोकार्डियम, तीसरा पकड़ लीजिए पेरिकार्डियम। एक चीज यहाँ आपको कॉमन ये रखना पड़ेगा सीक्वेंस में। अब यहाँ देखिए 3 चीजें कॉमन हो जाती हैं, जैसे कि आप ये पकड़ लीजिए EMG, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स, एक आपका ट्रिक भी बन गया, याद हो गया। लेकिन याद होना चाहिए हाँ एंडोकार्डियम, ये इनर साइड से चालू होता है, एंडोकार्डियम अंदर है,
मायोकार्डियम बीच में है, पेरिकार्डियम बाहर है। अब यहाँ टर्म भी अलग अपना, ये देखिए पेरी डिनोट करता है आउटसाइडर रीजन, कार्डियम क्या हुआ कवरिंग, तो जो आउटसाइडर कवरिंग है उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। सेम यहाँ मायोकार्डियम से यहाँ एंडोकार्डियम। अब इन तीनों मसल्स को जो लेयर है उसको समझने के लिए हम ये समझे बना कैसे उनका, काम क्या होता है, अगर उनका स्पेसिफिकेशन ऐसे समझिए। देखिए पहला तो हमने क्या समझा, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, पेरिकार्डियम, 3 लेयर हैं। अब तीनों का काम क्या है, जैसे हम पहला पकड़ लेते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम को 3 भाग में बांटा गया, सॉरी 2 भाग में। पहला लेयर ये था जो आप आउटर मतलब कि पैराइटल पेरिकार्डियम, पैराइटल पेरिकार्डियम कवरिंग हो गया। अब पैराइटल के बाद में हो गया जो इनर वाला लेयर था वो बोलते हैं विसरल पेरिकार्डियम। दोनों के बीच में जो स्पेस बचा पेरिकार्डियल कैविटी बोल दिया गया उसको। अब पेरिकार्डियल कैविटी आखिर आया तो फिर कैसे आया होगा, जिसका जनरेशन कैसे हुआ होगा, हम इसको ऐसे समझेंगे। अगर पेरिकार्डियल स्पेस है, फ्लूइड भी होंगे। अब पेरिकार्डियल फ्लूइड है, स्पेस है, चैम्बर बना, सबका शरीर में ऐसे भी कोई भी चीज़ों का निर्माण बेमतलब का नहीं होता है। शरीर को क्या लगा अपना ऊर्जा खर्च करने में, बेकार ऊर्जा क्यों खर्च करेंगे शरीर अपना। उन्होंने निर्माण के समय जब संरचना हुआ तो आप समझिए जो पेरिकार्डियम जो रीजन था आउटर पेरिकार्डियम वाला, हम उसको पैराइटल बोल रहे थे, पैराइटल ने फर्दर जाकर 2 लेयर बनाया। एक तो फाइब्रस बनाया उसने, दूसरा क्या बनाया सेरस लेयर बनाया। फाइब्रस बोल दिया आउटर लेयर को जो ट्यूनिका एडवेंटिशिया मतलब कि जो ब्लड के जो एपिथेलियम वगैरह है उनके लाइनिंग को अटैच करता है, मतलब कि ब्लड का जो वेसल है वो बाहर से अंदर जाती है, अंदर से बाहर जाती है। सेम यहाँ पर उन्होंने बना लिया। अब आते हैं विसरल वाला। विसरल की जो अटैचमेंट जो था हमने क्या बताया, फाइब्रस लेयर था। किसने बनाया था फाइब्रस लेयर, पैराइटल पेरिकार्डियम का जो अटैचमेंट था उनके साथ में था फाइब्रस और विसरल। विसरल के साथ में था कौन था, सीरस लेयर। तो सीरस जो लेयर है वो क्या है, मेसोथेलियम से बना है। अब मेसोथेलियम है तो ग्लैंडुलर टिश्यू वहाँ प्रेजेंट होंगे। एपिथेलियम है, एपिथेलियम जब ग्लैंडुलर सीक्रेट करेंगे। अब सीक्रेट क्या करते हैं, फ्लूइड सीक्रेट करेंगे। यही फ्लूइड जाके पेरिकार्डियल स्पेस में इकट्ठा हो जाता है। उनके इकट्ठा होने के बाद होता क्या है, जब हार्ट जब कॉन्ट्रैक्शन से बचाता है। और एक और बेनिफिट यहाँ देखिए आप, जो मतलब कि आप फाइब्रस जो लेयर था, फाइब्रस में पैराइटल जो पेरिकार्डियम था, तो जो पैराइटल पेरिकार्डियम जो फाइब्रस लेयर था वो क्या करता है, डायफ्राग्राम से अटैचमेंट एब्सॉर्ब होता है ताकि हार्ट को बाद में फर्दर कोलैप्सन से बचाएगा। अब पेरिकार्डियम जो होता है वो आपको मिडियस्टेनम रीजन हो गया या स्टर्नल रीजन के पास में, उसका अटैचमेंट देता है ताकि आपका हार्ट है ना कोलैप्स ना हो। सबका अपना अपना योगदान है चीज़ों में। अगर बॉडी कोई संरचना कर रही है तो उसको पता है कि भाई हम कैसे निर्माण हो रहे हैं, निर्माण कैसे है, क्यों है, सबका आवश्यक निर्माण है। अब ये 2 चीज़ें यहाँ हो गई, आप ऐसे समझिए। दूसरा हमने क्या पढ़ा था, मायोकार्डियम। मायोकार्डियम अपने आप में बराबर है। देखिए मायोकार्डियम को हम ऐसे समझ सकते हैं, मायोकार्डियम में 3 भाग बना रखा है। एक तो पूरा हार्ट का जो मतलब कि नेचर है मायोकार्डियम डिसाइड करता है। कैसे डिसाइड करता है, देखिए इंटरनल लेयर है तो जाहिर सी बात है पेस मेकर वगैरह होगा। ऐसे नोड सिनोआर्ट्रियल है, ऐसे नोड का नेचर, कैसे सेल्स बने हैं, कैसे ओरिजिनेट हुआ। अब देखिए आपने पढ़ा होगा स्केलेटल सिस्टम है। स्केलेटल सिस्टम में तो क्या था, मसल का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन था। सेम वैसा ही होता है, कार्डियक मसल फाइबर स्केलेटल मसल फाइबर को मतलब कि एग्जिबिट करता है। सार्कोलेमा यहाँ भी होंगे, मायोफिब्रिल्स भी यहाँ होता है। सार्कोलेमा कवरिंग बनाते हैं, मायोफिब्रिल्स होते हैं। अंदर जानते क्या होता है, इनके में है ना इंटरकलेक्टेड डिस्क, ये मतलब कि ब्रांच फाइबर होते हैं। कार्डियक मसल फाइबर जो होते हैं ना वो ब्रांच फाइबर होते हैं, लेकिन जो स्केलेटल मसल फाइबर होते हैं वो अनब्रांच्ड होते हैं। इन्होंने इसका निर्माण कर दिया। अब करते क्या, ये सिंसिटियम को करते हैं। जैसे समझिए आप, ये रहा 2 सेल है, सेल का मेम्ब्रेन सटा, यहाँ से भाई क्या वाल सटा, ऐसे नेचर बनाया इन्होंने। फर्दर भाई आगे ऐसे सेल फिर आगे बनता रहता है, ये बना फर्दर सेल, फिर सेल का ऐसे नेचर बना। फिर ये ऐसे लेयर बनाया, ऐसे गैप लेयर, यहाँ से ऐसे बना, फिर ऐसे गैप लेयर, फिर यहाँ से ऐसे बना। अब जो ये एम्प्टी स्पेस है, एडहेरेंट स्पेस, ये क्या कहते हैं, गैप जंक्शन बनाते हैं। और गैप जंक्शन में होता क्या है, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सारे आयंस होते हैं, ये यहाँ रेगुलेट होते हैं। ये मेटाबॉलिक जब यहाँ रिएक्शन होता है यहाँ पे, तो हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता है, कॉन्ट्रैक्शन, यही इंपल्स जनरेट करता है। आप ऐसा समझिए ना, ऐसे नोड जो सीना आर्टरियल नोड इंसान में पाया जाता है। अच्छा,
मतलब कि थोड़ा सिलेबस हट के अगर हम जाने तो सीनो आर्टेरियल नोड के अलावा साइनस वेनेसस नोड होते हैं एम्फीबियंस में। मतलब कि उन्होंने नापा किया था भाई यहाँ पेस मेकर जो होते हैं ना, ये सिर्फ आर्टेरियल नोड ही नहीं होता है, मतलब कि हार्ट के जो चारों चैम्बर होते हैं उसमें से कोई भी पेस मेकर तरह पर काम कर सकता है, लेकिन उतना इम्पल्स जनरेट नहीं कर सकता है जितना सीनो आर्टेरियल नोड जनरेट करता है। इसलिए ऐसे नोड को पेस मेकर बोला गया। ये पीसेस मिलकर बनाते हैं इनको, पेस मेकर से मिलकर बना दिया सीनो आर्टेरियल नोड को। ये इम्पल्स भेजते हैं, इनके साथ में 3 फाइबर से जुड़े होते हैं। मान लीजिए जैसे ऐसे नोड हो गया, ये होते कहाँ है, तो सुपीरियर वेना कावा के साइड में, यहाँ इनका रीजन होता है। इन्होंने 3 फाइबर बनाया, ये रहा 1 फाइबर, 2 फाइबर, 3 फाइबर, इंटरनोडल फाइबर से बोलते हैं इनको। आप इसे लैटरल समझ लीजिए, मीडियल समझ लीजिए और डॉर्सल समझ लीजिए, जैसे आपको समझना है। ये 3 फाइबर हुआ, इन्होंने जाके कहाँ से लिया भैया, सट्टा जो ओरिजिन हो रहा था यहाँ पे बंडल ऑफ हीस था, ये ट्रांसमिट किया, बाद में राइट लेफ्ट बंडल बना। ये सारे बॉडी में क्या है, इम्पल्स को ट्रांसमिट करते हैं ताकि विद कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन अपने प्रोसेस को कैरी ऑन कराते चले। ये मायोकार्डियम का काम था। मायोकार्डियम ने वो स्पेसिफिक वो मसल्स बनाए जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन में हार्ट के मदद कर सके। मायोकार्डियम वही करता है। इसके अलावा अगर आप तीसरा लेयर समझें कौन सा था, वो है एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम को आप ऐसा समझिए, कुछ खास काम नहीं है इसका। एंडोकार्डियम ऐसे पकड़िए, जो हृदय है, मतलब कि शुद्ध भाषा में बोला जाए तो हृदय, जो हृदय के जो अंदरूनी परत होती है, मतलब कि इंटरनल लेयर को बनाने में जो कैसे होती है, मतलब कि समझिए ना, म्यूसिलिनस टाइप की होती हैं, थिन होंगी, म्यूसिलिनस होंगी। वो क्या करती हैं, एपिथेलियम टिश्यू कवर करती हैं। वहीं ब्लड वेसल्स का जो एंट्री होता है, एंट्री एग्जिट हुआ है कौन से लेवल से होता है, एंडोकार्डियम से होता है। एंडोकार्डियम ने इंटरनली उसको रेगुलेट कर रखा है, मैकेनिज्म है रेगुलेट करने का। हमने 3 लेयर पढ़ लिए, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, पेरिकार्डियम, यही पढ़ना था। अब हालांकि हमको इसका ओवरव्यू पता है, अब हम पकड़ेंगे इसको मायोकार्डियम का जो कंट्रैक्शन होता है, मायोकार्डियम जो टिश्यू बनाते हैं, ये मायोकार्डियम जो टिश्यू हैं इनका हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन में कैसे इस्तेमाल होता है। हम फर्दर इस टॉपिक को कवर करेंगे। इस टॉपिक को कवर करने से पहले हमको ये थोड़ा सा कंसेप्ट वहाँ हम ले चलेंगे आपको स्केलेटल सिस्टम में। स्केलेटल सिस्टम में क्या था, मतलब जैसे कि समझ लीजिए डीपोलराइजेशन स्टेट में था, बॉडी डीपोलराइजेशन, मतलब कि समझिए मसल डीपोलराइजेशन था। आयंस आया, चैनल इन्फ्लक्स हुआ, यहाँ से आया आयन से यहाँ इन्फ्लक्स हुआ, मसल डीपोलराइजेशन पे रैपिड इनर्जी, मतलब कि समझिए इनिशियल स्टेज में वापस एक पोलराइजेशन रीपोलराइजेशन स्टेट में गया, खुला चैनल, फिर कुछ समय जब इन्फ्लक्स हो गया, यहाँ बाहर नेगेटिविटी हो गया, नेगेटिविटी को पॉजिटिव कन्वर्ट करने के लिए यहाँ से भैया आयन फिर बाहर निकले, तो यहाँ से कैल्शियम एंट्री ले रहा था, फॉस्फोरस जो भी समझ लिया, मतलब जो आयन्स वहाँ दिए गए थे। आप कैल्शियम यहाँ एंट्री ले रहा है, सोडियम यहाँ एंट्री ले रहा है, पोटेशियम बाहर निकलेगा, जाहिर सी बात है, तभी तो भाई बैलेंस होगा, तो नेगेटिविटी हो जाएगा यहाँ पे। अगर पोटेशियम बाहर निकल रहा है तो क्या होगा, सेल्स वापस फिर अपने कॉन्ट्रैक्शन से रिलैक्सेशन स्टेट में आएंगे। ये मसल्स और टिश्यू के साथ में यही नेचर होता है। तो अगर आप इनका नेचर को मायोकार्डियम में समझें, तो मायोकार्डियम जो यही होगी, हमने क्या बोला था शुरू में, स्केलेटल सिस्टम के जो मसल्स होते हैं, जो स्केलेटल मसल्स होते हैं, लगभग वैसे ही होते हैं कार्डियक मसल फाइबर, बस अंतर इतना ही होता है, ये ब्रांच्ड होते हैं, वो अनब्रांच्ड होते हैं। इस टॉपिक को समझने के लिए थोड़ा सा हम इस बात को ध्यान रखेंगे, जो मतलब कि पोलराइजेशन स्टेट, मतलब डीपोलराइजेशन स्टेट से बस रैपिड डीपोलराइजेशन, उसके बाद से रीपोलराइजेशन, वापस से डीपोलराइजेशन होना, ये सेकंड्स का काम होता है, माइक्रो सेकंड्स पे चल रहा है ये। इसको हमको समझ लेंगे हम, मतलब कि जितना तेजी से इन्फ्लक्स हो रहा है उतने तेजी से इफ्लक्स होता है आयंस का, हमको इस बात को समझना होगा। फिलहाल हम इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं और फर्दर के क्लास में फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।